See, in this class we'll start ESI. Okay. Okay. Yes, ma'am. In this class we will start ESI, Employee State Insurance Act 1948. There were 3 different acts that you needed to know. One was gratuity. We've completed gratuity. The second one is ESI. The third one will be PF Act. Okay. So इस क्लास में हम लोग ESI कवर करेंगे. ESI के बारे में settle down fast. ESI के बारे में brief introduction. We listen to brief introduction of ESI. देखिए, ESI समझने के पहले एक और बात समझिए कि इंडिया में 3 लेबर कमीशन बने हैं अभी तक. ओके, स्टॉप टॉकिंग. इंडिया में 3 लेबर कमीशन बने हैं अभी तक. वन इज रॉयल कमीशन ऑन लेबर. The second one is National Commission on Labour. First National Commission on Labour, and the third one is Second National Commission on Labour. देखिए, Royal Commission on Labour. Royal Commission on Labour जो 1929 में बना और इसने अपना रिपोर्ट 1931 में सबमिट किया. 2 साल मैम. हाँ. Then the other one is first National Commission on Labour. This was made in 1966 and it submitted its report in 69. Then we have second, ये खुद से लिख लेना, dot with him, on labour in 1999 and it submitted its report in 2002. Okay. National Commission on Labour. There are 3 National Commission on Labour that have been made till date in India. The first one is Royal Commission on Labour. The second one is First National Commission on Labour, and the third one is Second National Commission on Labour. We are more concerned with the first one, Royal Commission on Labour, because of certain reasons. As you can see, the date of Royal Commission on Labour, it is 29, right? 1929 की Royal Commission on Labour बना और 31 में इसने अपना report submit किया. As you can see, this is almost, this is before independence, right? And the chairperson of Royal Commission on Labour was J.H. Whiteley, who was also not an Indian. इस Royal Commission on Labour में सिर्फ एक ही Indian थे, R.C. Dutt नाम था उनका. तो ये आजादी के पहले का है, and this was the why this is important while we are ready to study ESI is that Royal Commission on Labour was the first commission जब इसने कभी भी लेबर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की. लोग तो पहले भी काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, बट उनके वेलफेयर के बारे में या ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ऐसा कोई बात नहीं होती. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने ही सजेशन पे ESI बना. ESI एक्ट समझने के लिए थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन में रॉयल कमीशन ऑन लेबर जानना जरूरी है. इसी कमीशन ऑन लेबर की वजह से ESI एक्ट का फॉर्मेशन हुआ. इस कमीशन ऑफ लेबर ने इस चीज का सजेशन दिया कि नहीं, इसका पार्ट नहीं है. देखिए, इन दोनों से आपको मतलब नहीं है, लेकिन अब क्या है कि आप इसको पढ़ेंगे तो ये दोनों भी कभी याद रह जाएगा तो काम आएगा. इसीलिए बता दिए कि ये जानिए कम से कम कि 3 नेशनल कमीशन ऑन लेबर बने हैं. हम लोगों को इससे कंसर्न है क्योंकि इसी के सजेशन पे ESI बना. ESI बना या फिर ये पहला कमीशन ऑन लेबर था जिसने कभी लेबर वेलफेयर की बात की. जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है, 1936 में आया पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. ये एक वेज रिलेटेड एक्ट है जिसमें ये बोला गया कि रेगुलरिटी ऑफ पेमेंट होना चाहिए. वर्कर्स को जो पेमेंट मिलती है दैट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस. समटाइम्स द एम्प्लॉयर विल पे इट ऑन 7th of the month, sometimes it will pay it on 10th of the month, sometimes on 20th.
this causes problem on part of labor. That is why there should be a regularity of payment and the employer should be obliged to give you the payment on certain dates. Okay? तो चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस की बात हो, चाहे वेलफेयर ऑफिसर की बात हो, चाहे ईएसआई की बात हो, ये सारा सजेशंस किसके रिकमेंडेशन पे आया? रॉयल कमीशन ऑन लेबर. मैम अभी जो सजेशन था वो सेकंड नेशनल कमीशन. नो, द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज डिसॉल्व्ड. कैन यू सी द डेट? 2002. This is a temporary body which is set up for a certain purpose, and after the purpose is served, it dissolves. It submits its report to the government. नहीं. और तब एक नेसेसरी एक्शन लिया जाता है. ये अपना कमीशन जो होती है वो बनती है, जैसे बैकवर्ड कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन है ना, आप सुने होंगे. तो ये चीजें कुछ सर्टेन चीजों के लिए बनती है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाद में बन चुकी है वो अभी तक है. Otherwise, the commissions are formed, they get dissolved, and they submit. ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसको सरकार ही बनाती है, इसलिए ताकि वो बता सके कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सजेशंस है जो दिया जा सकता है, और फिर सरकार उस पर नेसेसरी एक्शंस लेती है. ठीक है. ESI के बारे में आओ. You already know that ESI is a what kind of legislation? Social Security Act. Yes, this is a social security legislation. मतलब social security के जो 6 contingencies हम आपको पढ़ाए थे, sickness, maternity, disablement, death, old age and unemployment, उसमें से कुछ social securities को वो cover करती है. ESI एक बहुत शानदार एक्ट था. जब ये आया 1948 में, तो ये बहुत ही पायनियर लेजिस्लेशन था, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में. ठीक है. There was no act before ESI that could so comprehensively cover so many aspects of labor. चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट की बात हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे मैटरनिटी हो, ये सारी चीजें ESI में कवर्ड थी. कोई एक एक्ट जिसमें इतनी चीजें कवर्ड हो और इतना लेबर वेलफेयर के बारे में सोचा गया हो, ये अपने टाइम पे दिस वाज वन ऑफ इट्स काइंड एक्ट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड. एंड आई टोल्ड यू नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है. दिस एक्ट इज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, so it extends to the whole of India. In all the perennial factories where up to, I mean, more than 20 or up to 20 workers are employed. पेरिनियल फैक्ट्रीज क्या होती है? पेरिनियल फैक्ट्रीज क्या होती है? पेरिनियल फैक्ट्रीज वही होती है जो 12 महीने काम करती है, बंद नहीं होती है. डज नॉट डिपेंड अपॉन सीजन. बट सीजनल फैक्ट्रीज आर दोस फैक्ट्रीज हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन सीजन, और उसका टेन्योर जो होता है वो 6-7 मंथ्स होता है. डज नॉट वर्क फॉर द फुल टाइम. तो हाफ टाइम के लिए मिलता है ना 7 डेज. दैट इज इन ग्रेच्युटी. ठीक है. तो पेरिनियल फैक्ट्रीज में ही ESI कवर होता है. देखिए 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स जहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं वहां पर ESI कंपल्सरी लगता है. बट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई फैक्ट्री ऐसी ऑपरेट कर रही है और वहां की सरकार अगर चाहती है कि this ESI should be implemented in that particular organization also, it can request the central government to apply that act even when the number of working persons are just 10. उस टाइम पे उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑफ द क्लास इंटरेस्ट. इस क्लास ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये चीजें होती है. ठीक है. तो आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए और फिर हम बताते जाएंगे. राइट, नोट कर लो. ये ESI एक्ट जो थी वो that was like a health insurance which was like a health insurance which was launched. ESI को हेल्थ इंश्योरेंस के तरीके से लाया गया था. सजेशन ये दिया गया था कि वर्कर्स बहुत तरीके के
प्रॉब्लम से और हेल्थ इश्यू से गुजरते हैं, इसीलिए उनके हेल्थ के नाम पे कोई इंश्योरेंस होना चाहिए। तब आप जब ईएसआई ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली दिस एक्ट कवर्स एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। ओके, देखिए ईएसआई एक्ट 1948। ESI Act 1948. Write down the Royal Commission on Labour. The Royal Commission on Labour recommended. The Royal Commission on Labour recommended health insurance for the industrial workers. The Royal Commission on Labour recommended health insurance for the industrial workers. Such matter was discussed. Industrial workers. Such matter was discussed. Such matter was discussed in the first, second, and third Labour Minister Conference. First, second, and third Labour Minister Conference. First, such matter was discussed in the first, second, and third Labour Minister Conference. In 1940, 41, and 42 respectively. 1940, 41, 42 respectively. माने फर्स्ट लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1940, सेकंड कब हुआ? 41, थर्ड 42, ठीक है। In 1943, Professor B.P. Adharkar, B for Bharat, P for petroleum. Professor B.P. Adharkar, ADHARKAR, Professor B.P. Adharkar submitted a drafted scheme regarding the same. Submitted the drafted scheme regarding the same. Submitted the drafted scheme regarding the same to the government in 1944. To the government in 1944. Because he was the officer on special duty. Because he was the officer on special duty. Because he was the officer on special duty. Finally, in 1948, ESI Act was passed. ESI Act was passed. This act was implemented in phase-wise manner. This act was implemented in phase-wise manner. This act was implemented in phase-wise manner. ठीक है? ये act phase-wise manner में क्यों implement हुआ था? क्योंकि the ESI facilities are given through ESI hospitals. I have already told you in the class कि आप पटना में दो जगह पे ESI का हॉस्पिटल है। कहाँ है? नहीं, एक फुलवारी शरीफ में है ESI का हॉस्पिटल, एक दीघा में है और बिहटा में बन रहा है। ठीक है,
तो जो भी ईएसआई की फैसिलिटीज होती है दैट इज गिवन थ्रू द ईएसआई हॉस्पिटल्स। तो आप समझ सकते हैं कि एक्ट बन गया, वो ड्राफ्ट जो स्कीम ड्राफ्ट होती है उसके बेसिस पे एक्ट आती है, लेकिन हॉस्पिटल्स बनने में, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसलिए इसमें जो डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होता है इसमें टाइम लगता है। हॉस्पिटल्स रातों रात नहीं बन सकते, इट टेक्स सम टाइम फॉर हॉस्पिटल्स टू बिल्ड अप एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू बी बिल्ड प्रॉपर्ली। दैट इज व्हाई दिस एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन अ फेज वाइज मैनर। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। Introduction. This act is passed by central government. This act is passed by central government. So it extends to the whole of India. This act is passed by central government, so it extends to the whole of India. It is a social security legislation. It is a social security legislation. It applies in all those perennial factories. It applies in all those perennial factories where 20 or more persons are employed. It applies in all those perennial factories where 20 or more persons are employed. ठीक है, अब आप लोग खुद बताइए, कई बार क्लास में रिवाइज हो चुका है। नेक्स्ट बताइए एलिजिबिलिटी, क्या होगी एलिजिबिलिटी इसकी? ग्रेजुएटी में क्या था? ठीक है, हाँ 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस था। ईएसआई में क्या है? सैलरी कितनी होनी चाहिए? अप टू 21,000 से ऊपर होनी चाहिए, 21,000 से कम होनी चाहिए, अप टू 21,000। ठीक है, देखिए all the employees whose monthly wage is up to 21,000 per month, देखिए all the employees whose monthly wage is up to rupees 21,000 per month, up to rupees 21,000 per month are covered under the act. Not writing? Are covered under the act. अब देखिए 21,000 तो एक इसका गाइडलाइन है कि 21 अप टू 21,000 है, उनको इसमें कवर किया जाता है। बट देखिए ईएसआई हर पेरिनियल फैक्ट्री में लागू होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो। प्राइवेट की क्या टेंडेंसी होती है, प्राइवेट कंपनीज की, अगर आपकी एफिशिएंसी उसको लगती है कि आप कहीं से भी एफिशिएंट नहीं है या आपकी एफिशिएंसी किसी भी तरीके से कम है लोगों से, then it will prefer not choosing you, right? It will prefer not choosing you. तो वो हैंडीकैप लोगों को तो ऐसे भी नहीं लेगी, इसीलिए सरकार ने ये प्रावधान बनाया, the government made such provision that okay 21,000 is for the employee, for normal employees, but in case an employee is disabled, then even if his salary is up to 25,000 तक भी अगर उसकी सैलरी है तो उसको ईएसआई में कवर किया जाएगा। ईएसआई का पैसा कौन देता है? सरकार देती है। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ठीक है भाई, अगर कोई बात हो जाती है, कवरेज होता है तो सरकार ही पैसा देती है उसकी। तो सरकार ने इस मंशा से 20 अप टू 25,000 तक डिसेबल लोगों को भी इंक्लूड किया, बट नॉट मच टू दिस सक्सेस। फिर भी प्राइवेट सेक्टर्स ने एम्प्लॉयज रिक्रूट नहीं किए जो डिसेबल थे। ठीक है, तो एक्ट में अगर कुछ लाया जाता है तो कुछ सोच के लाया जाता है कि उस लालच से कि सरकार को पैसा देना है, हमें नहीं देना है, हैंडीकैप लोगों को भी रिक्रूट किया जाए, पर सरकार ने रिक्रूट किया। ओके,
नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन, इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? अप टू 21,000. से फॉर एग्जांपल somebody's salary is x, ठीक है, x सैलरी है तो 21,000 से नीचे, ठीक है. जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय होगा, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? दैट विल बी ओनली 0.75% ऑफ द वेज. जो इंडिविजुअल वेज होगा उसका 0.75% ही उसको कंट्रीब्यूट करना है. तो आप समझ सकते हैं कि जिसको 1% भी अपने वेज का कंट्रीब्यूट नहीं करना है और इतनी फैसिलिटीज बदले में मिल रही है, तो ये सरकार का कितना अच्छा सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, कि उसमें कितनी चीजें कवर्ड है. हम नेचर ऑफ बेनिफिट में आपको बताएंगे. ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी के कंटिजेंसीज को कवर किया गया, ठीक है. 0.75% का कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? व्हाट हैपेंड? नहीं मैम, 0.7, 3.25 हाँ बता दिया. 0.75 इंडिविजुअल वेज को देना, ठीक है, और एम्प्लॉयर को उसका 3.25% देना है, ठीक है. ग्रेचुटी इज नॉट कंट्रीब्यूटरी. कहीं पे ग्रेचुटी में ये पड़ी थी कि इंडिविजुअल को कितना कंट्रीब्यूट करना है? नहीं, ग्रेचुटी में आपको एक पैसा भी कवर नहीं करना है. ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट ही यही था कि वो दिया ही इसलिए जाता था क्योंकि आप बड़े लंबे समय तक काम कर चुके हैं, टू रिकॉग्नाइज योर मेरिटोरियस सर्विस. दैट इज व्हाई ग्रेचुटी वाज ब्रॉट अबाउट. ये सही कपल का ग्रेचुटी को एट द एंड ऑफ वर्क मिलेगा, रिटायर होने पे मिलता है ग्रेचुटी सिर्फ, और नौकरी छोड़ दी तुम बीच में तो हम स्पेशल केस में ना, नॉर्मली तो ये है ना कि जब वो मतलब कंपनी छोड़ेगा तब मिलेगा. हाँ, ये 5 साल के बाद. ये ईएसआई पैसा नहीं मिलता है. दिस इज बेनिफिट. वेट फॉर थिंग्स टू कम. ओके, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज अ कंट्रीब्यूटरी फंड. इट्स काइंड ऑफ अ कंट्रीब्यूटरी थिंग. आपके आप अगर सैलरी 21,000 से कम आपकी सैलरी है या अप टू 21,000, तो आप हर महीने ये डिडक्शन आपकी सैलरी से होता है 0.75% ऑफ योर वेज. हाँ बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये बहुत कम होता है. पीएफ जितना भी नहीं है, 12% है. तुम सोचो कि 1% भी नहीं है. ये वर्कर क्लास के लिए बना हुआ था ना. हाँ, डेली वर्कर नहीं, वर्किंग क्लास के लिए. इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हेल्थ का इंश्योरेंस है एक तरीके से, ठीक है. Point नहीं, everyone is covered. Whoever's salary is up to 21,000. Okay, and 3.25% is contributed by employer. ठीक है. देखिए इसमें एक और चीज एडेड है जिसकी सैलरी, ये एक्ट में लिखा हुआ है. यू नो दिस की गवर्नमेंट का एक्ट या अमेंडमेंट बहुत देर से होता है. कई सारी चीजें आज भी हमारे बहुत सारे एक्ट में ऐसी हैं जो एज इट इज चली आ रही हैं, जिनका अभी के टाइम पे कोई लॉजिक नहीं है ना. जैसे अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ था, वो उनकी राजशाही थी कि लॉर्ड या सरनेम या सर, ऐसे कोई अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है. कोई इंडियन नहीं लगा सकता था, तो इसलिए रखा गया था. आज भी वही चीज है क्योंकि उस एक्ट में अमेंडमेंट ही नहीं किया गया. मोदी सरकार ने आने के बाद बहुत सारे लॉ को यूजलेस बताया था ना कि ये बेकार है, इसको डिसॉल्व किया जाना बहुत जरूरी है. जैसे प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व कर दिया गया और नीति आयोग बना. ऑलमोस्ट तो प्लानिंग कमीशन से कंपेयर ही है ना नीति आयोग. हाँ, लेकिन वास्ट वे में काम करता है. ये वास्ट वे में नहीं, बहुत सभी चीजें तो नहीं देती है ना, सिर्फ रजिस्टर्ड जो कंपनी होती है वही देती है. हाँ, जो हाँ बिल्कुल. आप लेबर लॉज पढ़ रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन की बात तो करेंगे, ये अंडरस्टूड सी बात है. ठीक है. व्हाट हैपेंड? कम है फर्स्ट. ठीक है. तो ये नीति आयोग अभी भी, जैसे स्टेट का रोल बढ़ गया नीति आयोग में. प्लानिंग कमीशन एकदम कंप्लीटली सेंट्रल लेवल पे काम करती थी, लेकिन जब नीति आयोग की हम बात करते हैं तो स्टेट का भी जो कंट्रीब्यूशन होता है एडवाइस में या प्लानिंग ऑफ, हाँ, उसको रिप्लेस किया गया. नो, दैट इज एट सेंट्रल लेवल. एंड हु इज द चेयरपर्सन? प्राइम मिनिस्टर. So 3.25 is contributed by the employer. लेकिन देखिए एक्ट में एक और चीज मेंशन है कि जिनकी सैलरी पर डे की 137 रुपीज है,
37 per day. These people 0.75 और 3.25 कितना हुआ? जोड़ के 4%. तो 137 जिनकी सैलरी है अप टू या जिसकी कम है उसका पूरा 4% एम्प्लॉयर ही देगा. तो सैलरी कितना हुआ? 4100. ठीक है, उसका पूरा 1 डे की सैलरी 137 से कम है तो उसका पूरा पैसा कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा. लेकिन आप सोच के बताइए कि अभी किसी अनस्किल्ड वर्कर का भी मिनिमम वेज 137 नहीं होता है, वो से ज्यादा ही होता है. इसीलिए तो 500 500 हाँ ना. तो वो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है. देखो जैसे बिहार गवर्नमेंट ने अपने लेबर्स को 5 कैटेगरी में बांटा है: अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर, हाईली स्किल्ड वर्कर्स और सुपरवाइजरी. तो ये सबका अलग अलग. बट कोई भी लेबर बुलाते घर वगैरह के आसपास तो 500 घर की बात नहीं कह रहे हैं हम, वो तो अपना भी चार्जेस तुम बोल सकती हो. कंपनी जब उसको अपॉइंट करती है अनस्किल्ड काम में शिफ्ट होने के लिए, ये अनस्किल्ड काम है, कोई सामान उठाने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो फिक्स्ड है वो भी अब 137 हार्डली कहीं रहता है, नहीं रहता है. ठीक है, राइट डाउन द टॉपिक. कंट्रीब्यूशन. The employer shall pay 3.25% of shall pay 3.25% of an individual wage salary, 3.25% of an individual's wage. Similarly, the employee shall pay 0.75% of his wage. ओके, ठीक है, समझ में आ गया 0.75 और 3.25%. अब आप समझिए इस चीज को कि पेरोल में ये क्यों पढ़ाया जा रहा है. आप सोच सकते हैं कि किसी कंपनी में अगर मान लीजिए कि 20,000 वर्कर्स हैं और उस 20,000 वर्कर, सिर्फ वर्किंग क्लास की बात कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव छोड़ दीजिए, सिर्फ 20,000 वर्कर हैं, वेज अगर अलग अलग है, सबका कंट्रीब्यूशन अलग है ना, कंट्रीब्यूशन अलग अलग. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग है, उसका कैलकुलेशन होगा उसकी सैलरी के 3.25 के रेशियो में. सबका एम्प्लॉय का तो पैसा कट जाता है ना, उसको तो कटा हुआ पैसा मिलता है, उसको कुछ करना नहीं है. लेकिन जो पेरोल में काम कर रहा है कंपनी के, उसको तो सारे का कैलकुलेशन रखना है ना. हर एम्प्लॉय का कितना पैसा कटा, वो पेरोल का पैसा कट होकर के अपने जगह पे पहुंचा. एम्प्लॉयर नहीं रखता है ना ये पैसा, ठीक है. जैसे पीएफ का पैसा कहाँ जमा होता है? ईपीएफओ में. कंपनी भी जमा करती है ईपीएफओ में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, वो है. प्लस आपके पेमेंट का रिसीट जनरेट करवाना, ये सारा काम पेरोल डिपार्टमेंट का होता है ना. तो आप समझ सकते हैं कि पेरोल कितना हेक्टिक काम होता होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में. अलग बेनिफिट, अलग कॉम्पेंसेशन, अलग डिडक्शंस, उसके बाद अलग लोन किसी का. तो दिस इज सच अ टीडियस टास्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. कैलकुलेशन कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड. इसीलिए जो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जिसमें ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, वहां पे ये काम कौन करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट. अकाउंट्स का भी है, लॉ है, इनकम टैक्स वगैरह, तो वहां करता है. लेकिन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एज ह्यूज एज एम्फेसिस और टीसीएस, देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पेरोल. ठीक है, कंट्रीब्यूशन देखिए. अब लिखिए कि इस ईएसआई में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. राइट डाउन नेचर ऑफ बेनिफिट्स. Point number 1, sickness benefit. Sickness benefit. Point number 1, sickness benefit. 2, maternity benefit. 3, disablement benefit. 3, disablement benefit. 4, dependent benefit. 4th, dependent benefit. 5th, funeral benefit. Funeral, FUNERAL, funeral benefit. कितना हुआ? 5.
6th लिखो मेडिकल फैसिलिटी। 7th लिखो मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। 8th लिखो रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी। रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी। रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी। 9th अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। Okay, I'll tell you. Just write down. Unemployment allowance. लिख लिया? देखिए, sickness आप समझते हैं? Sickness benefit यानी कि if you fall ill, you'll get certain days of leave. डिटेल में आपको ये एक्ट नहीं पढ़ना है। इस एक्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए 3-4 क्लास लग जाएगा। ओके, आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है इसका। Sickness, you know, when an employee falls sick under ESI, he is given certain period of time for leave. And उस लीव में a certain percentage of the wage is paid even if the person is on leave. यानी सोशल सिक्योरिटी का एक पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है ना कि इनकम इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, इनकम शुड कंटिन्यू फॉर द फैमिली एंड द पर्सन, राइट। तो सिकनेस बेनिफिट ये हुआ। मैटरनिटी यू ऑल अंडरस्टैंड। देखिए, जो लोग ईएसआई के मैटरनिटी बेनिफिट में कवर्ड हैं, यानी ईएसआई में जो फीमेल वर्कर्स पेमेंट कर रही हैं, कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, उनके ऊपर फिर अलग से मैटरनिटी एक्ट नहीं लगेगा। ये समझिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अलग एक्ट है ना, और ईएसआई में भी प्रोविजन है इस एक्ट का, इस प्रोविजन का। जो मैटरनिटी में यहाँ कवर्ड होती हैं उनके ऊपर फिर वो अलग से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं लगता है, ठीक है। उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। उसमें 80 डेज का सर्विस देना जरूरी होता है विमेन एम्प्लॉय को, और इसमें 70 दिन का ही। उसमें सरोगेट मदर का कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें सरोगेट मदर के लिए भी प्रोविजन बनाए गए हैं। मैटरनिटी एक्ट में नहीं, सरोगेट मदर का इसमें है, चाइल्ड अडॉप्शन के। हाँ, और इसमें भी वो डाला गया है कि अगर कोई अडॉप्ट भी करता है बेबी और अप टू 3 मंथ्स है तो उसको सर्टेन पीरियड ऑफ लीव दिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को माँ की जरूरत होती है। तो इट इज कंसिडर्ड कि माँ को even if she has not naturally not given birth to that child, the child will need mother to get along with her, ठीक है, अडॉप्शन केस में। ये मेजॉरिटी हो गया। डिसेबलमेंट आप जानते हैं, डिसेबलमेंट क्या होता है? एक्सीडेंट वगैरह के केस में जो बेनिफिट्स दिया जाता है, दैट इज डिसेबलमेंट। डिपेंडेंट बेनिफिट इसमें जो है ये डेथ बेनिफिट है। जब डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की तो उसके जो नॉमिनीज जो होंगे, इसमें डिपेंडेंट्स जो उनके फैमिली के होंगे, उनको बेनिफिट दे दिया जाएगा, डेथ बेनिफिट। ओके, देन यू हैव फ्यूनरल बेनिफिट। सिंस दिस वाज बेसिकली मेड फॉर वर्किंग क्लास, फॉर वर्कर्स, सो this provision of funeral benefit is added because sometimes they were so poor that they could not manage money for even the funeral part. So 15,000 is paid for the funeral thing, and it is given to the eldest son of the family. देखिए, एक्ट भी थोड़ा थोड़ा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। आप जब पढ़ेंगे, हाँ, आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको सोच, इसीलिए बोला जाता है ना कि सोसाइटी इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। So you'll see कि the eldest son of the family is given 15,000 rupee for the funeral. In case of absence of his eldest son, if there is no son or something, then that money is given to any other family member for his proper funeral. Okay. Then what is next? Medical facility. Okay, so medical facility is given through ESI hospitals. सिकनेस में आप वहां जाएंगे, मैटरनिटी में डिलीवरी कराने विमेन एम्प्लॉइज जाएंगी। जो ESI में मेंबर्स कवर्ड हैं, उनकी वाइफ को अगर मैटरनिटी का इश्यू है तो वो भी ESI हॉस्पिटल, हाँ, पूरा फैमिली कवर्ड है मेडिकल फैसिलिटी में। The next is medical facility after retirement. See, even after a person who was always insured, means he has been paying contribution and he is retired from the organization. Even after his retirement, if he is he is eligible for getting medical facilities after retirement. Very nominal charge of ₹10 per month is taken from him. 10 रुपए पर महीने का। आप समझ सकते हैं 10 रुपए की वैल्यू क्या है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का कितना बड़ा सोशल सिक्योरिटी का ये लेजिस्लेशन है। महीने की अगर सिर्फ किसी को डायबिटीज है तो दवा 2000 की आ जाती है, होती है ना। तो आप सोच सकते हैं कि वर्कर क्लास के लिए अगर मेडिकल फैसिलिटी लगभग फ्री ही है इसके में, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का कितना बड़ा ये एक सोशल सिक्योरिटी
स्टेप है ना? हाँ, नहीं प्राइवेट में भी ESI लगती है। हाँ, ESI पर ऑल पेरिनियल फैक्टरीज लिखे ना आप अभी, ठीक है? मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, ओके? So in that case 120 per year is charged from the employee, and he and his family both are covered under the medical facility after retirement. Then you have the rehabilitation facility. See what happens in case somebody is disabled, right? Rehabilitate किया जाता है उसको hospitals में, यानी if that person is above 45 years of age, those who are covered in ESI, okay? If his age is above 45 years and he has more than 40% of disablement, 40% से ऊपर का disablement है अगर उसको, और 45 years के ऊपर एज है, then he is rehabilitated at government hospital. मतलब आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड की जाती है, आर्टिफिशियल पैर प्रोवाइड किया जाता है, रिहैबिलिटेट किया जाता है हमको, ओके? देन यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, दो तरीके के लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं, एक जिनको नौकरी लगी ही नहीं वो अनएम्प्लॉयड है, और एक जिनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। फिर ESI covers those people who are terminated from the service, माने वो काम कर रहे थे बट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बाहर कर दिया किसी कारण से, ठीक है? क्लोजर हो गया या रिट्रेंच करना पड़ गया या एनी अदर थिंग, सस्पेंड हो गया तो suspension is not termination. So in that case 50% of wage of what he was earning, किसी की सैलरी अगर 15,000 है तो 7,500 उसको अगले एक साल तक सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे दिया जाता है, ठीक है? क्यों दिया जाता है बताइए आप? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी में पढ़े थे ना? पेंशन 50% of wage for the next 1 year. Why? Very good. मिले नहीं मिले, और वो किसी भी सोशल एटलीस्ट बेसिक प्रॉब्लम, हाँ, उसकी नीड्स पूरी होते रहे और कोई किसी तरीके के सोशल माल फंक्शन की तरफ ना बढ़े, चोरी चकारी वगैरह में इन्वॉल्व ना हो जाए। मजदूर क्लास का आदमी ही ये समझने वाली बात है कि अगर पैसा इंटरप्ट एंड दे जनरली हैव अ बिग फैमिली, राइट? हाँ, नहीं तो उसको नहीं, ESI में जो कवर्ड है मतलब जो सिर्फ ESI में काम कर रहे हैं उसके लिए फिर सोशल असिस्टेंस तो सरकार देती है। पढ़े थे ना सोशल असिस्टेंस? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए चलो, थैंक यू।